My dear students, you will have to say yes, sir, you can record. Yes, sir, you can record. Permission granted. Yes, Oh, sir. thank you, Shazan. So, financial market is basically uh, see this conversation, then I will talk. So, all of you are ready now to learn more about the financial market? Yes, no? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Take this screenshot of this so that you are very clear about that what we have to study. And there is no part has been deleted in this financial management and financial market. So whatever is there, all are equally important. All are, all these things are important. So today we'll be talking about the concept, function, and maximum types. Let us understand first the concept of the financial market. As we know that what we say market means what? Can anyone respond? Sir, it's a Where platform where the buyers and sellers meet. Where where buying the and selling exchange of Correct? goods that is where the exchange of goods and Takes services place. take place. Takes place. Correct. So if I say fish market means what is being sold there? Gold or milk? If I say fish market, Fish. No, sir. Fish. naturally, no? If I say, Fish. cotton market, if I say cotton market, then what is being sold there? Cotton. Same way, Cotton. if I say financial market, so the financial market means the finance is being purchased and sold there. What is finance? You have already discussed it. Finance means the fund which is required to buy the raw materials as well as to pay the salary as well as to meet out the day to day activities. Yes, no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir.
So in financial market, what will be purchased? Finance will be purchased. What will be sold? Finance will be sold. And finance means fund. Fund means money. No? So we can say that all, money market, capital market, all these are the part of the financial market. Yes? Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. And the moment we say that money, finance, fund, immediately the word comes to your mind is the bank, the stock exchange. Yes or no? Yes, sir. So we have understood that banks, stock exchange, investor, all these are the participant of this market. They are either the purchaser or they are the seller. Okay. Now, from where it comes means whatever is the thing which is being sold and purchased in the market, from where it is coming. See, a household, he is earning the money, spending the money. So whenever he spends the money, where it goes? It goes to a business firm. Yes or no? And business firm produce the goods, sell it in the market. Then who purchase it? Household. So household and business firm are connected in this way also. Number one. Number two, the household are not only spending the money, but they save also. Yes or no? So they become savers also. जितना पैसा कमाते हैं सब तो नहीं खर्च कर देते, कुछ पैसे हम बचा के भी रखते हैं, है ना? तभी तो इस पेंडेमिक में देखो सब लोगों ने जो बचा हुआ पैसे था उससे बहुत सारा वो बहुत काम आया, हाँ? बहुत लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा पाया। तो हम लोग जो सेव करते हैं वो कहाँ सेव करते हैं? या तो हम किसी कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, वो फाइनेंशियल मार्केट में ही है, या हम बैंक में जमा कर देते हैं। बैंक उस पैसे का क्या करता है? बैंक इसी पैसे को फिर बिजनेस फर्म को लोन के रूप में दे देता है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. दूसरा एस्पेक्ट समझो, बिजनेस या तो प्रोडक्शन करता है, मार्केट में सामान बेचता है, उससे पैसा लाता है, पैसा कमाता है। एक और है तरीका, वो बिजनेसमैन भी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसे, है ना? किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। हाउस होल्ड सेवर भी हो सकते हैं, कुछ पैसे बचे वो बैंक में जमा कर दिया, या हाउस होल्ड इन्वेस्टर भी हो सकते हैं ना। तो ये इस फाइनेंशियल मार्केट में बेसिकली ये चार प्लेयर ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इन्वेस्टर कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करके किसी कंपनी का शेयर खरीद के इन्वेस्ट कर रहा है। बिजनेस फर्म भी बैंक में रुपया जमा करते हैं, उनका भी बैंक में अकाउंट होता है, उस तरीके से भी वो करते हैं। इन्वेस्ट भी करते हैं, किसी दूसरी कंपनी के शेयर भी खरीदते हैं। इसी तरह से हाउस होल्ड ऑल्सो, दे ऑल्सो सेव द मनी एंड देन दे इट एक्चुअली रीचेस टू फाइनेंशियल मार्केट। सो वॉट एवर इज हैपनिंग हियर is called financial market, and these are the people who are contributing into it: business firm, investor, savers, and household. And how they are contributing to it, hope this point is clear to you. If this is clear, then I will move further, otherwise you can ask the question. Any question? No भी बोल सकते, no sir. No, sir. Yes, sir. Thank you. I would request someone to read this line, first line. A business is a
Swam, read this. These are the lines from your NCERT book only. You can either read it from the book or whatever you are seeing on the screen, you can read it from the screen. Swam Agrawal, are you here? Yes, sir. Yes, sir. Please read. A business is a part of an economic system that consists of two main sectors: households, which save the fund, and business firms, which invest these funds. A financial market रुक जाओ helps to link the savers and रुक the जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ ये देखो household is the savers, business firms are in the categories of the investor, they become investor and they both are contributing to it. The same line has been written there. Yes, further a start. financial market help to link the savers and the investors by mobilizing funds between them. In doing so, it performs रुक what जाओ is known as रुक an जाओ रुक जाओ रुक जाओ एलोकेटिव फंक्शन रुक जाओ एक एक करके पढ़ो. फाइनेंशियल मार्केट क्या कर रहा है? सेवर्स को और इन्वेस्टर को लिंक कर रहा है बाय मोबिलाइजिंग देयर फंड. अदरवाइज मान लो हम पैसा अपने पास ही रखे रहे कमा करके अपने घर में रखे रहे, है ना, क्योंकि हम शेयर नहीं खरीदें, बैंक में नहीं जमा करें, तो ये बिजनेस तक कैसे पहुंचेगा? पहुंच पाना संभव है क्या? नहीं है. इसी फंक्शन को हम एलोकेटिव फंक्शन बोलते हैं, यानी रिसोर्सेस को एलोकेट करना. यस It allocates a direct fund available for investment into their most productive investment opportunity. When the allocative बस रुक function is जाओ performed, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ. मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, ये ऐसा क्यों लिखा है मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट? ऐसा भी तो हो सकता है किसी भी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को चला जाए ये पैसा. बट फाइनेंशियल मार्केट का काम है ये इंश्योर करना कि ये मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में ही जाए. अब सवाल उठता है कैसे? मान लीजिए आपने बैंक में रुपए जमा किए, तो बैंक किसको देगा ये पैसा? बैंक के पास में दो लोग प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं. एक बोल रहा है कि मैं जो बिजनेस करूंगा उसमें मुझे प्रॉफिट होगा 10,000 रुपीज का. दूसरा आदमी आता है वो बोलता है कि मुझे प्रॉफिट होगा केवल 5,000 का, और बैंक के पास में एक ही ऑप्शन है, किसी एक ही को लोन दे सकता है. तो किसको लोन देगा? 10,000 वाले को या 5,000 वाले को? 10,000. 10,000. ठीक है. अब इन्वेस्टर के हिसाब से जरा सोच के देख लेते हैं. आपको शेयर खरीदना है, पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो आप किस कंपनी के शेयर खरीदना पसंद करेंगे जो डिविडेंड 5 रुपया देती है या डिविडेंड 10 रुपया देती है? 10 रुपए. 10 रुपए. 10 वाला. रुपए. 10 रुपया कौन कंपनी दे सकती है जो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी, जो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा? Yes, sir. यस नो? Yes, sir. सो इस तरह से इन्वेस्टमेंट जो है वो मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में जाता है. हाँ, वो इधर उधर नहीं जाएगा फाइनेंशियल मार्केट से. यस, व्हेन द एलोकेटिव फंक्शन इज परफॉर्म वेल, दो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके. क्या क्या? पहला, बोलो. So the rate of return offered सानवी. to household would be higher. यस, पहला क्या? रेट ऑफ रिटर्न हाउसहोल्ड को जो ऑफर हो रही है वो ज्यादा हो जाएगी. क्यों? अगर मान लो बैंक में आप उस बैंक में रुपया जमा करोगे, उस अकाउंट में पैसा जमा करोगे जिसमें आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा. यस नो? Yes, sir.
सेकंड लाइन पढ़ो। Scarce resources. Scarce resources are allocated to those firms which have the highest productivity for the economy. करेक्ट, ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। हाँ, वह कहते हैं हमारे सोसाइटी में, हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेस आर स्कैर्स। तो ये रिसोर्स जो है वो उसी जगह जाएंगे जहां ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से काम हो रहा होगा, क्योंकि उसी को लोन मिलता है, उसी को शेयर, उसी के शेयर बिकते हैं और उसी कंपनी के प्रोडक्ट भी मार्केट में बिकते हैं ना। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सभी स्कैर्स रिसोर्सेज जो हैं वो ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है। करेक्ट। अब इसमें से कुछ बड़े इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। दिस आई वुड आस्क यू टू रीड चेंजिंग द स्टूडेंट। एक एक करके स्टूडेंट सब पढ़ते हैं। नेक्स्ट, सानवी यू रीड। There are two major alternative mechanisms through which allocation of funds can be done via bank or financial market. Second, करेक्ट, दो ही तरीके हैं। कौन कौन सा? एक तो है बैंक और दूसरा है फाइनेंशियल मार्केट से। राइट, फाइनेंशियल मार्केट का मतलब अभी हम बोल चुके हैं, समझ रहे होंगे। नेक्स्ट लाइन, हाउस होल्ड। households can deposit their surplus funds with banks, who in turn could lend these funds to business firms. करेक्ट है ना। वो एग्जाम्पल ये देखो इधर वाला, हाउस होल्ड ने पैसा बैंक में जमा किया, बैंक ने बिजनेस फर्म को लोन दे दिया। करेक्ट। नेक्स्ट लाइन, Alternatively, households can buy shares and debentures offered by business using financial markets. इस तरीके से भी पैसा जा सकता है। तो ये जो लाइन ऊपर में लिखी हुई थी ये समझ आ गई, इसी का एक्सप्लेनेशन है ये। The द process प्रोसेस, allocation of funds is done is called financial intermediation. रुक जाओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, प्लीज अंडरलाइन दिस इन योर बुक। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। इंटरमीडिएशन फंड किस, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन किसको बोलते हैं? जिसके थ्रू हम एलोकेशन ऑफ फंड करते हैं। The process of allocation of fund is called financial intermediation. Correct? आगे, Banks and financial markets are competing intermediaries in the financial system and give households a choice of where they want to place their savings. करेक्ट, रुक जाना। अब देखो हमारे पास में दो चॉइस है, बैंक में रुपया जमा करें या शेयर खरीदें। और ये हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं? एलोकेशन ऑफ फंड, इंटरमीडियरीज के कारण, है ना। ये दोनों इंटरमीडियरीज कंपटीशन करते हैं आपस में, तभी हमें होगा। अच्छा, बैंक में जमा करेंगे तो इतना मिलेगा, यही अगर हम शेयर में पैसा लगा देंगे तो इतना मिलेगा। उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ पैसा अपना लगाएं, कहाँ हम अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट, A financial market is a market for creation of exchange of financial assets. Financial market exists whenever a financial transaction occurs. यस, रुक जाओ, इसी को आप अंडरलाइन कर लीजिए। डेफिनेशन के रूप में आप इसी को यूज करेंगे। फाइनेंशियल मार्केट माने जहां पे क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स होता हो। और फाइनेंशियल एसेट समझना हमारा काम रह गया। आगे चलते हैं। Financial transactions could be in the form of creation of financial assets, such as the initial issue of shares and debentures by a firm, or the purchase and sale of existing financial assets like equity shares, debentures, and bonds. करेक्ट। फाइनेंशियल एसेट्स क्या होती है समझ आ गया? ये सब फाइनेंशियल एसेट्स हैं जिसके थ्रू आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जिसको खरीद करके, वो सब फाइनेंशियल एसेट्स हैं। इवन पब्लिक डिपॉजिट भी आपकी एक फाइनेंशियल एसेट्स है। ठीक,
देखो उसी को, इस पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इस फाइनेंशियल सिस्टम में समझाया गया। हाउस होल्ड क्या कर सकता है, उसके पास में दो ऑप्शन है हाउस होल्ड या सेवर के पास में। वो या तो फाइनेंशियल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करे या बैंक में जमा कर दे। और अगर बैंक में जमा करता है तो बैंक लोन के रूप में यही पैसा बिजनेस को देता है ना। और जो पैसे आप फाइनेंशियल मार्केट में लगाते हो, किसी कंपनी का आप शेयर खरीदते हो, तो वो पैसे अल्टीमेटली उसी बिजनेस को जाते हैं, राइट। और यही बिजनेस हमारा फिर उसी पैसे से अपना प्रोडक्शन करता है। तो ये पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है। होप दिस हैज मेड इट क्लियर ना, सबको ये बात समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हम नेक्स्ट एक फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया फाइनेंशियल मार्केट का? मन में कुछ Yes, डाउट है तो अभी पूछ सकते हो।